Questions are the very important thing to be asked, because if you will not ask question, you will not able to learn new things. So to learn new things today in this video, we are going to discuss the question answers of chapter number 9, that is reproduction. So let us start. Before we start, we will discuss the summary of the whole chapter in very short. There are two types of reproduction in animals, that is asexual and sexual. Examples of asexual reproduction that we discussed are binary fission and budding. The reproductive system in males and females are different, with different organs performing the specific functions. The whole reproductive system of male and female we learnt. So you must be able to find the difference between these two systems which are found in two different genders or sexes. There are two types of fertilization, that is internal and external. Internal fertilization is what? That the fertilization of male and female gamete is taking place inside the woman's body, that is internal. And external means which is these male and female gametes are fertilizing with each other outside the female's body. The sex of a baby is determined by the chromosome carried by the father's sperm. So, father is responsible for the gender of a child. Depending on how they produce an offspring, animals can be viviparous or oviparous. Viviparous animals are those animals which are giving birth to their young ones, while oviparous are those animals which are laying eggs. In animals such as frog and butterfly, the newly hatched young ones undergo a series of changes that is called metamorphosis. Adolescent pregnancy to be avoided. Why? Because it is dangerous to both the mother and the child. So this was the content that we discussed in both the parts of the video. Now let us see the keywords of the chapter. These keywords you have to write down in your fair notebook, that is reproduction, fertilization, viviparous, oviparous and metamorphosis. Now first we are going to discuss about the in-text exercise. So here you are given two columns and you have to match the columns and then you have to give the reason next to that correct answer. जैसे कि एक आपके लिए ऑलरेडी किया हुआ है कि डॉग के सामने कैट रखा, सो बोथ आर फर्टिलाइजिंग विथ ईच अदर बाय द इंटरनल मीन, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन उसमें है तो दोनों में सेम है. ऐसे ही आपको रेस्ट चारों को मैच करना है और उसका वाई यू चूज दिस ऑप्शन ओनली, तो उसका स्पेसिफिक रीज़न देना है. तो सेकंड वन इज अमीबा, तो अमीबा इज रिप्रोड्यूसिंग थ्रू दी बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन के सामने 2 लिखो और 2 के सामने उसका रीज़न लिखना है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. थर्ड वन इज हाइड्रा, तो हाइड्रा के सामने करेक्ट ऑप्शन लिखना है कि हाइड्रा इज रिप्रोड्यूसिंग वाया दी बर्डिंग प्रोसेस, वाया फॉर्मेशन ऑफ बर्ड, तो करेक्ट ऑप्शन है ई, दैट इज बर्ड, तो उसमें भी सेम रीजन आएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देन फोर्थ वन इज ओवम, तो व्हाट इज ओवम, तो ओवम इज अ फीमेल गैमेट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी, तो ओवरी बी में दिया है तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, तो उसके सामने लिखो कि ओवरी इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. देन नेक्स्ट इज स्पर्म, तो स्पर्म इज अ मेल गैमेट, तो इन ए ऑप्शन मेल गैमेट इज रिटन, तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन एंड उसके सामने लिखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अंडरस्टूड टू ऑल, ये बहुत ही ईजी है, सिंपली हम पहले मैच करते थे मगर अभी इसमें मैच करने के साथ साथ आपको उसके रीजंस भी देने हैं. ऐसा भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड मेंटली. देन सेकंड एक्सरसाइज इज गिव 2 एग्जांपल्स फॉर द फॉलोइंग.
ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस्ड बाय इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो आप कोई भी दो ऑर्गेनिज्म के नाम लिख सकते हो जो कि इंटरनली फर्टिलाइजेशन जिनमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन कैट्स एंड डॉग्स, आप ह्यूमन भी लिखो, ठीक है, लायन भी लिखो, मतलब जो भी एनिमल्स हैं कि जिसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सो दिस आंसर में वेरी। और सेकंड वन इज ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन फ्रॉग एंड फिश। देन थर्ड वन इज ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, तो उसमें एग्जाम्पल आएगा हाइड्रा एंड यीस्ट। नाउ लेट अस डिस्कस द टेक्सचुअल एक्सरसाइज। द फर्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दो ऑप्शंस दिए हैं। एग्जाम में अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, तो आपको ऑप्शन के बिना ही ये फिल इन द ब्लैंक्स लर्न करनी पड़ेगी। द फर्स्ट वन इज in asexual reproduction a new individual is formed by dash, सिंगल पेरेंट और बोथ द पेरेंट्स। तो यहाँ पे asexual reproduction है तो उसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो करेक्ट आंसर इज सिंगल पेरेंट। आपको तो आंसर लिखना भी है ब्लैंक में, मैंने सिर्फ यहाँ पे अंडरलाइन किया है, बट यू विल ऑल्सो राइट द आंसर इन टू द ब्लैंक विद द पेंसिल ओनली। Second one is in dash a new organism grow out from a part of the parent body, तो पेरेंट बॉडी के पार्ट में से नए ऑर्गेनिज्म का बर्थ होना, तो वो कौन से टाइप का मेथड, रिप्रोडक्शन मेथड है, तो दैट इज व्हाट द बडिंग। एसेक्सुअल तो है ही, मगर एसेक्सुअल में भी स्पेसिफिक कौन सा, तो दैट इज बडिंग। थर्ड वन इज मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूसेस स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसको, गैमेट्स। वेरी गुड, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है गैमेट्स। फोर्थ वन, द डैश ट्रांसफर्स द स्पर्म्स अलोंग विद द सीमेन इनटू द फीमेल्स बॉडी, तो उसके लिए मस्कुलर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है। द नेम ऑफ दैट मस्कुलर ऑर्गन इज पेनिस, तो करेक्ट आंसर इज पेनिस। फिफ्थ वन इज द डैश इज वेयर द जाइगोट मैच्योर्स एंड ग्रोज टिल इट इज रेडी टू बी बोर्न, तो कहाँ पे इम्प्लांटेशन हमने डिस्कस किया था, यूट्रस की वॉल के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है यूट्रस। सिक्स्थ वन इज इन डैश फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी, इनसाइड मतलब इंटरनली होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देन सेवंथ वन इज द मेल सेल्स कंटेन डैश क्रोमोसोम्स, तो मेल सेल्स के पास कौन सा क्रोमोसोम का सेट होगा, X एंड Y, जबकि फीमेल के पास होता है XX, तो याद रखना कि मेल सेल्स कंटेन XY क्रोमोसोम और इसी की वजह से उनकी जेंडर चेंज होती है फीमेल से, ठीक है। नेक्स्ट बी एक्सरसाइज इज ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लिख ना पाओ तो ये एक्सरसाइज फेयर नोटबुक में लिख लेना अलोंग विद द करेक्ट स्टेटमेंट। The first one, no animals can multiply asexually. They do so only by laying eggs. ऐसा होता है नहीं, सारे ऑर्गेनिजम्स एग ले नहीं करते हैं, दे आर रिप्रोड्यूसिंग थ्रू दी सेक्शुअल मेथड ऑल्सो, ठीक है। और यहाँ पे तो क्या लिखा है कि कैन मल्टीप्लाई एसेक्सुअली, और ये होता है लेइंग एग से, तो एग ले करना दैट इज ऑल्सो पॉसिबल वाया दी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एग्स फॉर्म नहीं होते हैं, तो यहाँ पे दोनों तरीके से ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, नो कट करके लिखना है, एनिमल्स कैन मल्टीप्लाई एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बोथ, और फिर पूरा जो दूसरा सेंटेंस है थे डू सो, वो पूरा कट कर दो। Second statement is once a female reaches puberty, the ovary secretes hormone that stimulate it to release female cells called sperm. पूरा सेंटेंस सही मगर लास्ट में एक ही वर्ड गलत दे दिया, दैट इज स्पर्म, तो उसकी वजह से ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। तो यहाँ पे आपको करेक्शन में ये लिखना है, पूरा सेंटेंस वैसे के वैसे ही लिख लो मगर स्पर्म की जगह पे आपको ओवा लिखना है, अंडरस्टूड। Then third one is fertilization in a female's body take place inside the fallopian tube, so that is true. Fourth one is the baby grows inside the mother's womb for 40 days and is then pushed out of the mother's body.
तो हमने डिस्कस किया था कि जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, तो 9 मंथ का। अगर 9 मंथ को आप वीक्स में कन्वर्ट करो तो होता है 40 वीक्स। ठीक है, तो 40 डेज की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं आती। 40 डेज मतलब क्या हुआ, 1.5 महीना भी नहीं हुआ। तो कभी भी 1.5 महीने में बच्चे का बर्थ पॉसिबल है, नहीं है। तो पूरा जेस्टेशन पीरियड अगर आप वीक में लिखते हो तो 40 वीक्स आता है, और अगर महीनों में लिखते हो तो 9 मंथ्स आता है। तो यहाँ पे अगर आपको 40 कॉमन लिखना है तो 40 वीक्स लिख दो, डेज को कट करके 40 वीक्स लिख दो, या फिर पूरा 40 एंड डेज दोनों कट करके 9 मंथ लिख दो। ठीक है, दोनों के मतलब ये दोनों चलेगा, आइदर यू राइट दिस और दैट। Then fifth one is a newborn baby is very small and is unable to look after itself. तो that is true. बेबी बहुत ही छोटा होता है, अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकता है. So we as an adult we have to take care of them. Sixth one is the larva of a butterfly looks like an adult and transforms due to drastic changes. तो बटरफ्लाई का लार्वा एकदम से एडल्ट जैसा दिखता है, हमने देखा था, नो, कंप्लीटली डिफरेंट दिखता है। हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये लार्वा में से बटरफ्लाई बनेगा। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। लुक्स पूरा कट करके वहाँ पे आपको लिखना है डज नॉट लुक। तो ये सेंटेंस ऐसे लिखना है आपको, द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई डज नॉट लुक लाइक एन एडल्ट एंड विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड into the butterfly due to the drastic changes. Understood all? Now next is MCQ. The first MCQ is which of these is a reproductive process shown in Hydra? तो हाइड्रा में कौन सी प्रोसेस थ्रू रिप्रोडक्शन मिलेगा? तो बर्डिंग। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, बर्डिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट मेल गैमेट, दैट इज ये चारों में से कौन सा सही है? Option number D, both B and C, because they are produced by the testis and they are called sperms and have a tail. Third one is which of these is a narrow tube that helps to transport sperms produced in each testis? तो इसमें आता है वास डेफरेंस, और अगर वास डेफरेंस की जगह पे अगर आपको स्पर्म डक्ट दिया है तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जिसके भी हमने दो नाम स्टडी किए हैं वहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि दो में से कोई भी एक वर्ड हो सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर यहाँ पे वास डेफरेंस की जगह पे आपको स्पर्म डक्ट दिया होता, तो अगर आपने ऐसे ही मगअप कर लिया कि वास डेफरेंस ही इसका सही आंसर है और आपको एग्जाम में स्पर्म डक्ट दे दिया, तो आपको तो लगेगा कि इसमें तो करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं। बट स्पर्म डक्ट एंड वास डेफरेंस बोथ आर सेम ओनली। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इन विच ऑफ दिस एनिमल्स डज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी? तो उसमें एग्जाम्पल आएगा फिश एंड डॉग। बाकी दूसरे जो है उसमें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस शोज अ मेल चाइल्ड? नीचे 4 पेयर आपको तीन पेयर दी है, उसमें से कौन सी पेयर मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो उसमें ऑप्शन है करेक्ट बी, एक्स वाई, बिकॉज वाई वाई करके तो कुछ होता ही नहीं है, जेंडर ही नहीं है ऐसी हमारे पास, सिर्फ 2 जेंडर है, गर्ल एंड बॉय। तो बॉय के लिए एक्स वाई एंड गर्ल के लिए एक्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सिक्स्थ वन इज विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो उसमें करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट वन, दैट इज अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ सिंगल पेरेंट। सेवंथ वन इज विच ऑफ दिस रिफर्स टू रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेल एंड फीमेल इंडिविजुअली? तो इन दैट वन करेक्ट ऑप्शन इज गैमेट्स। देखो यहाँ पे स्पेसिफिक आपको नहीं पूछा है, मगर दोनों मेल एंड फीमेल में जनरल वे से आपको पूछा है, इसलिए यहाँ पे गैमेट्स आएंगे आंसर में। क्योंकि जाइगोट एम्ब्रियो, तो जाइगोट तो फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म होता है और जाइगोट फॉर्म होने के बाद का स्टेप है एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट हो गए, डी तो नन ऑफ दिस दिया है, तो बचा क्या? गैमेट्स। एट्थ वन इज इन विच ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज फर्टिलाइजेशन अकर्स एंड जाइगोट गेट्स फॉर्म्ड? तो उसमें करेक्ट है ओविडक्ट। अभी फिर से मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ओविडक्ट की जगह पे अगर आपको फेलोपियन ट्यूब दिया
तो आपको पता होना चाहिए कि बोथ आर सेम ओनली, ठीक है, दोनों में से कोई एक वर्ड हो सकता है, वो ध्यान रखना। 9th one is which of these refers to the stage of growth of the human embryo when most body parts can be identified, तो that is known as fetus। मतलब कि बेबी जो अंदर ग्रो हो रहा है मदर के वूम में, अगर उसके पार्ट्स आइडेंटिफाई होना स्टार्ट हो गए, मतलब हाथ, पैर, फेस, लंग्स वगैरह, तो वो बेबी को एम्ब्रियो नहीं बोला जाता है, उसको फीटस बोला जाता है, विच इज ग्रोइंग इनसाइड द मदर्स वूम्ब। 10th वन इज विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई बट नॉट अ फ्रॉग। बटरफ्लाई के लिए करेक्ट है बट फ्रॉग के लिए नहीं है, तो उसमें क्या आंसर आएगा? सी, दैट इज द लार्वा टर्न्स इनटू अ प्यूपा बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट, बिकॉज फ्रॉग में तो टेडपोल बनता है, प्यूपा नहीं बनता है, जबकि यहाँ पे बटरफ्लाई के केस में लार्वा में से प्यूपा बनेगा। सो दिस वॉज द MCQ। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। Give one word for the following. The first one is the process by which living things produce offspring of their own kind. So that is reproduction. The special reproductive cells, that is gametes. The process by which male and female gametes fuse to form a zygote. So that is fertilization. Male sex hormone, the name of it, testosterone. The process by which an ovum is released from the ovary, that is ovulation. The period in which the baby stays and grows inside the mother's womb, so that is known as gestation period. देखो इसका स्पेलिंग जी से स्टार्ट होता है, मगर फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि इसको गेस्टेशन नहीं जेस्टेशन बोला जाता है। while pronunciating it you have to use j, not g. Understood? It is gestation. The part of the female's body that is called the womb, तो उसको क्या बोला जाता है? यूट्रस। साइंटिफिकली इट इज नोन एज यूट्रस, बट जनरल वर्ड इसका वूम्ब है। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू लाइव ऑफस्प्रिंग, दैट इज विविपेरस। एनिमल्स दैट ले एग्स दैट हैच इनटू ऑफस्प्रिंग, तो दैट इज ओविपेरस। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू अ सीरीज ऑफ ड्रास्टिक चेंजेस, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। देखो ये सेम चीज आपको रिवर्स करके भी पूछी जा सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10th वन में मेटामॉर्फोसिस आंसर है, मगर उसकी जगह पे अगर मैं ऐसा पूछ लूँ कि व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, तो उसमें आपको उसके सामने जो 10th सेंटेंस में लिखा है ना, वो पूरा आपको डिफाइन लिखना पड़ेगा। व्हाट इज विविपेरस, तो उसके सामने आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा कि एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू लाइव ऑफस्प्रिंग। ठीक है, समझ में आया सबको? ऐसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों तरीके से याद रखना है। The next is short answer type questions. The first one is what is reproduction? Name two types of reproduction in an organism. तो आपको reproduction की डिफाइन देनी है यहाँ पे, और फिर दो टाइप इसकी लिखनी है, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सेकंड वन है व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। तो इस यहाँ पे भी आपको एसेक्सुअल की डिफाइन लिखनी है, और सिर्फ दो एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अमीबा एंड हाइड्रा दैट वी हैव लर्नड। देन थर्ड वन इज व्हाट आर गैमेट्स, नेम द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पे गैमेट्स क्या है, तो दीज आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स। मेल गैमेट का एग्जाम्पल है स्पर्म एंड फीमेल गैमेट का एग्जाम्पल है ओवम। देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस लिखना है, मैं आपको डिफरेंस दे दूंगी PDF में, और एल्स आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हो। तो आपको डिफरेंस के फॉर्म में ही लिखना है, पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखना है। जो PDF में भेजूंगी उसमें स्टार्टिंग में तो पैराग्राफ के फॉर्म में ही होगा, मगर उसके नीचे अगर आप देखोगे तो मैंने डिफरेंस भी दिया होगा, तो वो एक चीज़ याद रखना। व्हाट आर क्रोमोसोम्स, नेम टू टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स क्या है, टू टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमने 8th चैप्टर
सेल वाले चैप्टर में डिस्कस किए थे, सेवंथ चैप्टर में डिस्कस किया था कि डीएनए क्या है, तो इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मगर जब भी वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंडेंस होता है तब वो बन जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द क्रोमोसोम। एंड व्हाट एल्स इज आस्क्ड कि 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो कौन से 2 टाइप के सेक्स क्रोमोसोम है? सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड सेक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम एंड एक्स सेक्स क्रोमोसोम। सिक्स्थ वन इज व्हाट इज पार्टुरेशन। क्या है पार्टुरेशन? याद है किसी को? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी द वॉल ऑफ यूट्रस बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्टुरेशन। व्हेन द fetus is fully developed, after that the walls of the uterus begin to contract in order to push the baby out of the mother's body. That process is known as parturition. Next is what are viviparous animals? Give 2 examples. So viviparous animals are those that will give birth to the young ones. For example, cat and dog. Humans also you can write. Then define metamorphosis. Name 2 animals that undergo metamorphosis. तो metamorphosis की define लिखनी है. It is also given in the keywords. And 2 animals के नाम लिखो, तो that is frog and butterfly. Then next is write a short note on gender issues and myth associated with the female infanticide. फीमेल इन्फेंटिसाइड के साथ साथ जो भी जेंडर इश्यूज है वो आपको लिखने हैं। दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 137। ठीक है, पूरा पैराग्राफ दिया है, वो पर्टिकुलर पॉइंट आपको लिखने हैं। मेनली कौन कौन से इश्यूज है? जैसे कि हमको पता ही है कि सब लोगों को लड़का ही चाहिए, नोबडी वांट्स फीमेल चाइल्ड। क्यों? क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि अगर लड़की हुई तो शादी के टाइम पे उसको दहेज वगैरह देना पड़ेगा, इट वुड बी बर्डन ऑन अस, और जब तक वो जिएगी तब तक हमें फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। ये सारी प्रॉब्लम्स गर्ल्स के साथ कनेक्टेड है, ऐसा सोसाइटी में सब लोग सोचते हैं। और इसी वजह से किसी को भी गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए, सबको बेटा ही चाहिए। और फिर भी अगर गर्ल्स का बर्थ हुआ, उनको बेटी हुई, तो फिर क्या होता है आपको पता ही है, हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि उसकी हेल्थ के साथ इग्नोरेंस करना, उसके एजुकेशन के साथ इग्नोरेंस करना, और फिर उसकी जल्दी शादी करवा देना वगैरह वगैरह। ये प्रॉब्लम सारी आपको डिटेल में लिखनी है। अगर अर्ली प्रेगनेंसी में डिटेक्ट हो गया कि गर्ल चाइल्ड है सोनोग्राफी थ्रू, तो फिर वो टर्मिनेट करवा देते हैं बेटी वो फीटस को, फीमेल fetus को. So that all points you have to write down over here. Then 10th one is what are some of the problems associated with the adolescent pregnancy. एडोलेसेंट प्रेगनेंसी में हमने जैसे डिस्कस किया थे कि 19 ईयर्स से कम उम्र की लड़की प्रेग्नेंट होती है तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, दैट ऑलरेडी भी डिस्कस्ड. मेन प्रॉब्लम तो उसकी बॉडी अभी प्रिपेयर नहीं होती है, वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कि कोई भी वे से वो प्रिपेयर नहीं है एक बच्चे को बर्थ देने के लिए. सो ऑल दिस प्रॉब्लम्स यू हैव टू राइट डाउन ओवर हियर इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट इज long answer type question. The first one, with the help of labeled diagram explain how an animal reproduce asexually. तो उसमें आपको डायग्राम भी ड्रॉ करनी है और एसेक्सुअल की दोनों मेथड्स लिखनी है, दैट इज बडिंग एंड बाइनरी फिजन. ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया है कि राइट अबाउट द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बाइनरी फिजन एंड बडिंग अलोंग विद द डायग्राम ऑफ इट्स प्रॉपरली. Then next is explain the structure of human male and female gamete. तो उसमें आपको क्या करना है, तो जो फीमेल गैमेट की डायग्राम आपको दी है पेज टेक्स्ट बुक में ऑन पेज नंबर 131, वो डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है और जो भी लेबल वगैरह दिए हैं वो आपको लेबल करने हैं और उसके नीचे ह्यूमन स्पर्म का भी डायग्राम दिया है और लेबलिंग वगैरह दिया है. तो वो आपको डायग्राम ड्रॉ करके उसका आंसर लिखना है जो कि उसमें दिया है पेज नंबर 131 में एक पैराग्राफ है उसमें दिया है.
Then with the help of a labeled diagram explain how reproduction take place in the human being. तो उसमें आपको क्या लिखना है, तो पेज नंबर 131 पे लास्ट में आपको एक पूरा चार्ट दिया है, एक फिगर दी है. द फिगर नंबर इज वेट अ मिनट, फिगर नंबर नहीं दिया आपको, फिगर 9.4. सॉरी, यहाँ पे फिगर 9.4 नहीं है, मगर जो ह्यूमन स्पर्म की डायग्राम दी है उसके नीचे आपको जो टेबल दिया है कि उसमें उसके ऊपर लिखा है कि एन ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में आपको लिखना है. देन नेक्स्ट इज फोर्थ वन, डिस्क्राइब द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. उसमें आपको पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस दी है ऑन पेज नंबर 133 पे. ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करनी है. सो राइट द स्टेप्स फ्रॉम द गिवन फिगर 9.4 पॉइंट वाइज. मतलब फिगर में 9.4 नाम की जो फिगर है ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन वहाँ पे लिखा है, उसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऐसे करके 5 स्टेप्स आपको दिए हैं. पाँचों के पाँचों स्टेप ऐसे ही लिख देना. ठीक है, और आपको डायग्राम के बारे में पूछा गया है. यस, यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ द डायग्राम. आपको सिर्फ और सिर्फ वो स्टेप्स ही डिस्क्राइब करने हैं. अगर आपको डिटेल में जाना है तो आपको सीधा वो स्टेप्स फर्टिलाइजेशन करके 1, 2, 3, 4, 5 करके स्टेप्स दिए, आप वो भी लिख सकते हो. चॉइस इज योर्स. देन नेक्स्ट इज fifth one, with the help of an example illustrate how a pair of chromosomes determine the sex of a child in human being. तो उसमें आपको क्या लिखना है, यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम एंड हाउ दे आर फ्यूजिंग विथ ईच अदर. मतलब यू हैव टू डिस्कस द पैटर्न ऑफ कॉम्बिनेशन डिफरेंटली. और उसके बाद आपको नीचे फिगर 9.5 में जो आपको ड्राइंग दिया है वो ड्राइंग भी आपको ड्रॉ करना है. मतलब आपको पैटर्न दी है कि कैसे एक्स क्रोमोसोम दूसरे मेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ कंबाइन होकर फीमेल चाइल्ड बनाता है, एंड दूसरा एक्स क्रोमोसोम कैसे वाई के साथ कंबाइन होकर मेल चाइल्ड बनाता है, और कैसे 50-50% पॉसिबिलिटी रहती है ऑफ हैविंग फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड. अंडरस्टूड ऑल. नाउ नेक्स्ट इज 6th one, विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. तो उसमें तो आपको पता ही है कि पहले तो आपको मेटामॉर्फोसिस डिफाइन करनी है, और फिर आपको ये पूरे स्टेप्स डिस्कस करने हैं कि कैसे एग में से लार्वा बनता है. अभी यहाँ पे हमें फ्रॉग के बारे में पूछा है, इसलिए हम टेडपोल के मतलब मैंने ब्रैकेट में टेडपोल लिखा है, और फिर वो टेडपोल में से कैसे एडल्ट फ्रॉग बनता है. और नीचे आपको फिगर 9.9 में फ्रॉग की लाइफ साइकिल भी दी है, वो भी आपको ड्रॉ करना है. मगर सुनो, ये फ्रॉग ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं. जैसे कि लार्वा में ड्राइंग दिया है, टेडपोल में ड्राइंग दिया है, वो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली एग्स ड्रॉ कर लेना, फिर एरो करके लार्वा लिख देना और ब्रैकेट में टेडपोल लिख देना. फिर अगेन एरो करके टेडपोल ग्रोज लेग, फिर अगेन एरो करके टेडपोल लूजेज इट्स टेल, और फिर लिख देना एडल्ट फ्रॉग. फ्रॉग की डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मगर सिर्फ ये वो साइकिल आपको ड्रॉ करनी है ये आंसर में. आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू. फिर ये लेट्स रिकॉल करके, जैसे हर वक्त मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, आप होमवर्क में करोगे. उसके बाद ये लेट्स ऑब्जर्व करके एक्सरसाइज, उसमें आपको ये लेबलिंग करने हैं. ये लेबलिंग के लिए आप पेज नंबर 132 रिफ़र भी कर सकते हो. तो देखो यहाँ पे मैंने किया है कि फर्स्ट वन टेस्टिस है, सेकंड वन स्पर्म डक्ट है, और थर्ड वन इज़ यूरेथ्रा. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्ट वन इज़ ओविडक्ट, सेकंड वन इज़ ओवरी, थर्ड वन इज़ यूट्रस एंड फोर्थ वन इज़ वजाइना. Then second question is a number the picture in order to show the life cycle of frog correctly. तो यहाँ पे आपको ऐसे ही रैंडमली पिक्चर्स दे दिए हैं, आपको इसको अरेंज करना है. मतलब पहले कौन सा स्टेप आता है, फिर सेकंड कौन सा स्टेप आएगा. तो ये जो नीचे बॉक्सेस दिए ना, वहाँ पे करेक्ट स्टेप लिख लेना. तो फर्स्ट तो एग्स, सेकंड वन में क्या है टेडपोल, फिर थर्ड वन में क्या है तो कि टेडपोल लूजेज इट्स टेल, और फिर फोर्थ में एडल्ट फ्रॉग. ठीक है, तो ऐसे 1, 4, 2, 3 इज़ द करेक्ट सीक्वेंस.
Then second one is give two differences between the larva and the adult. क्या टू डिफरेंसेस है? तो पहला तो कि लार्वा कैन स्विम्स इन द वाटर एंड इट हैज़ टेल, दो पॉइंट हो गए. वाइल एडल्ट कैन हॉप, हॉप मतलब वो जंप लगा सकता है, वो ये लार्वा के जैसे स्विम नहीं करता है मगर एडल्ट कैन हॉप, वाइल लार्वा कैन नॉट हॉप. एंड एडल्ट हैव 4 लिम्स. ठीक है, लार्वा के पास सिर्फ एडल्ट जैसे 4 लिम्स नहीं होते विच आर मेकिंग देम टू हॉप. Then third is which is the process known as in which a larva changes into an adult through drastic changes. वो प्रोसेस का नाम लिखना है, that is metamorphosis. लेट्स कनेक्ट में जो दिया है वो आपको नहीं करना है. देन लेट्स अप्लाई. तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है माल्थीज फैमिली ब्लेम्स हर फॉर द बर्थ ऑफ अ डॉटर. आर दे राइट इन ब्लेमिंग हर? वाई और वाई नॉट? तो डेफिनेटली दे आर नॉट राइट because Y chromosome of a father is responsible for the determining the sex of the fetus. So over here they should not blame Malti because male is responsible for the female child. Then Maya's mother says eating nutritious food would help the growing baby inside. Is she right? How can the mother's food help the baby? So yes, definitely Maya's mother is right because that zygote will get attached to the mother's body. कैसे? Via attaching itself into the endometrium of the uterus. तो जो मदर मतलब जो खाना मदर खाएगी जितना न्यूट्रिशियस होगा उतना ही ज़्यादा न्यूट्रिशन बच्चे को मिलेगा एंड दैट वुड हेल्प दैट fetus to grow more betterly. So due to that reason Maya should eat nutritious food. Then next exercise is let's analyze and evaluate. तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये दिए हैं एग्स के क्रोमोसोम्स एंड स्पर्म्स के क्रोमोसोम दिए, आपको उसकी पेयरिंग बनानी है. तो ऐसे आपको बनानी है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे. पहले ये एक को कंसीडर करो, ये एक का फ्यूज़न ये एक्स के साथ करवाओ तो एक्स एक्स बनेगा. फिर ये एक्स का फ्यूज़न ये एक्स के साथ करवाओ तो दूसरा एक्स एक्स मिलेगा. फिर वो एक का टर्न ख़त्म हुआ, फिर ये एक्स आएगा तो ये एक्स का इसके साथ करवाओ, ये एक्स का इसके साथ करवाओ तो एक्स वाई एंड एक्स. समझ में आया सबको कि पहले ये x का इन दोनों के साथ करवाओ, फिर ये x का इन दोनों के साथ, तो आपको पैटर्न मिल जाएगी. फर्स्ट वन इन द ग्रिड गिवन अबव इल्यूस्ट्रेट हाउ x एंड y क्रोमोसोम कैन कंबाइन टू गिव 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स बाय फिलिंग इन द स्क्वायर. तो जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे स्क्वायर बना लो. फिर इवेल्युएट वेदर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड विल डिपेंड ऑन द क्रोमोसोम ऑफ एग और द स्पर्म दैट फर्टिलाइजेज इट. गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर. तो हमने जैसे डिस्कस किया कि जब भी एक्स क्रोमोसोम मदर का फादर के वाई क्रोमोसोम के साथ कंबाइन होता है तभी वो मेल चाइल्ड बनता है. तो डेफिनेटली स्पर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द बेबी. विच काइंड ऑफ स्पर्म? तो स्पर्म हैविंग वाई क्रोमोसोम. सो दैट्स इट अबाउट दिस एक्सरसाइज. अच्छे से टेक्स्ट बुक में जो भी कंटेंट लिखना है वो अच्छे से पेंसिल से लिखना, ज़्यादा कंजेस्टेड मत लिखना. एंड इफ़ यू थिंक इट इज़ नॉट रिटन प्रॉपरली इनटू द टेक्स्ट बुक then you can also write that same thing into your fair note book.